Hello dear friends, welcome back to our channel and as promised with all of you, we will be discussing the UPSC Prelims 2018 paper and the rules to solve it. The rules have been already told in the last video of 2019 discussion paper. You can go through that video once to know about the rules and then you can come back to the analysis and solving of this paper. Now the fundamental idea behind making this video is again to make you understand how rules actually work and how we could have solved the paper in the real examination. Again, we'll definitely like to say that all these analyses are based on a hindsight bias. The papers in the real examination look very difficult, therefore the cutoff goes very low. However, in these situations and under the new normal of UPSC, where there is a lot of unpredictability, these rules have been found to be very useful. There have been people who have been able to score more than 120, 130 even last 2 years, applying basic common sense, applying these rules, reading properly and solving mock test papers. There is again a word of caution. Many of these rules are exclusive to UPSC only. So the mock papers have not been able to form their papers on the trend of UPSC. They do have the unpredictability nowadays. However, many of the rules which we have discussed, which we'll be discussing, are still not applicable in mock papers, and hence students often tend to score less marks in mock papers. I was also one of them who used to score about 80 to 90 marks, started with 50 odd marks in mock papers, and then sometimes also when the rules used to work and when things were easy and were asked from the things that we had already read, used to score about 110, 120 also. So many a times many of us start feeling the pressure of mocks. The idea from mocks should not be to judge your skills. The idea should be to judge the process again and again, whether you are able to apply the rules again and again in the right manner, whether you are able to recall the basics, whether you are able to understand from your mistakes and rectify them in your next attempt. Now in the course of next 3 videos, we'll take you through the UPSC Prelims 2018 paper. Now to begin with, from where we left, so this is the basic rule which I'll always suggest to all of you, that you should read the paper calmly. The more you understand this statement, the more you will be able to process the paper easily and the more marks you will be able to score in the examination. Keep your thought process very simple. Have a very good sleep before the examination. By very good sleep, I mean at least 6 to 7 hours. It will help you perform on your optimum on the day of the examination, which is very important for an examination like UPSC, where nowadays the idea is not on the rote learning. The idea is now on understanding the questions in the exam day itself and solving on the spot only. Street smartness rather the paper smartness will definitely take you through. Trust the rules and yourself. Now this is something which you need to evaluate yourself through the mocks, and if the mocks are not enabling you to trust yourself and the rules, then you should not be solving those mock papers. This is again very important because UPSC previous year question papers, UPSC other examinations taken by UPSC should be then the base to solve, and then positively you should give the paper having a view that you will be able to clear the examination. Now apart from the 21 rules that we had discussed, and we'll see how those rules are applied again in this paper, there are certain rules like Western Ghats, WTO. Now Buddhism and Jainism alternate. What is the meaning of this? Basically, if you are now stuck with the option, then you should always go with something like Western Ghats or WTO. And WTO is one of those topics which are often repeated in the examination. Similarly, जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आप देख रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब है एक साल बुद्धिज्म से आता है तो दूसरे साल जैनिज्म आता है ऑप्शन में. So suppose this year UPSC Buddhism was asked, next year Jainism will be asked. Now similarly you will see in 2018 paper Jainism was asked, 2017 Buddhism was asked. So more or less it is now becoming a trend. अगर आपको तुक्केबाजी करनी है, again this is very important. If you know the answer, you should always go through it. Lastly, सबसे important ये पॉइंट है कि logically think about all the questions.
अगर आपको आंसर पता है, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है, देन डोंट अप्लाई दीज रूल्स, अप्लाई योर कॉमन सेंस। अगर नहीं पता है तब उसके ऊपर एड ऑन्स है ये, दीज आर नॉट योर पिलर्स, ठीक है। Parent department ministries are generally wrong nowadays. That is also one kind of heuristics which you can take. Sometimes if you are knowing the right department, you are very sure of it, then go for it. Otherwise, if you are not sure, then you should apply this rule. इस तरह का एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के लिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको रूल इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको चीजें पता है तब तो पता है, तब प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं नहीं प्रॉब्लम है। अगर चीजें नहीं पता है, then only you have to eliminate, you have to solve more questions nowadays because you are not sure in the examination whether you will be scoring 70 or 80, 90, 100, 110. Then you should go for these rules. And more than, less than, some of these are generally true. However, again there is a very logical conclusion. अगर मैं कहता हूं कि मोर देन 90% ऑफ समथिंग, देन मोर देन 90% इटसेल्फ इज अ वेरी ऑकवर्ड, वेरी मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट। किसी भी चीज में 90% से ज्यादा या मोर देन 70% ऑफ द पीपल लिविंग are literate in particular state and you know that the state is backward, now you should take a caution. However, if it is given more than 30% are literate, then absolutely true. Similarly, less than में less than अगर 50% दिया है, then you should be careful. अगर less than 70% दिया है, then there is a buffer to you. We'll see in one of the questions कि कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। Now we'll come to the solving of the paper. Now this year paper was again in the real examination a difficult one. However, let us try to see कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते थे। इस पेपर के एनालिसिस में हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कहाँ रूल फेल करता है, किन क्वेश्चंस में रूल अप्लाई करने के बाद हम गलत आंसर डिड्यूस कर लेते, ये भी काफी जरूरी है। मैंने हमेशा आपको ये भी चीज बताया है कि 10 क्वेश्चंस आप लगाते हैं रूल से, 8 भी सही हो जाए, 2 भी गलत हो जाए, यू विल ऑलवेज हैव अ गुड ट्रेड ऑफ। तो आपको ये समझना जरूरी है कि रूल्स कभी कभी गलत आंसर देंगे, एंड देंगे ही देंगे, यही तो नेचर ऑफ द एग्जाम है। बट ज्यादा सही देते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। इस बार हम एनालिसिस में ये भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस को हम सेग्रीगेट करेंगे कि वो इजी था रूल लगाने के बाद, या एवरेज था, या डिफिकल्ट था, रूल एप्लीकेबल था कि नहीं। पहले इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 to 30 सेट डी। आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी पास इस साल के सेट डी के पेपर को या कोई भी सेट को खोल के क्वेश्चंस को अपने पास देखें, उसका हार्ड कॉपी रखें अगर आपके पास उपलब्ध है तो, तब जाके इस वीडियो को देखें। दैट विल एक्चुअली गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, इससे फायदा होता है, ठीक है। अब हम पहले सवाल पे आते हैं और हम देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह से रिपीट करेगा। अब हम रिवर्स देखेंगे इस साल 2019 को 18 से कोरिलेट करके। तो IRNSS से सवाल पूछा गया था। नाउ इसमें हमें पता है कि 7 सैटेलाइट हैं। अब इसमें आपको हो सकता है ये नहीं पता हो कि 3 + 4 हैं किसके किसके। तो पहला एक आपको क्या दिया हुआ है, तो मैंने राइट साइड में लिखा भी है कि ऑप्शंस के पास नंबर हैं, तो लेकिन डेप्थ में दिया हुआ है। देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। मैं बताऊंगा कि इसका और डायरेक्ट इसी सवाल को यूपीएससी ने 2020 में कैसे पूछा है, सेम रूल को अप्लाई करके। दूसरा ऑप्शन है 5500 स्क्वायर किलोमीटर, स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स जनरली गलत होता है, इस तरह का किलोमीटर, नॉर्थ साउथ ये सब। और तीसरा क्या है कि एक और स्टैटिस्टिक्स आपको दिया हुआ है नंबर कि 2019 तक इंडिया के पास अपना ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, फुल ग्लोबल कवरेज। ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो भी 2019 के बीच तक आ जाना। एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ईयर्स ये सब जनरली गलत होते हैं। तो इसमें तीनों गलत हो सकता था, लेकिन आपको अब मैं यही बताऊंगा यही सेम चीज 2020 में उन्होंने 19 में किस क्वेश्चन में किया था, जिस क्वेश्चन में उन्होंने पीवीटीजी पूछा था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप वाले में 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी दिया था, और एक जगह पे उन्होंने 95 कर दिया था 75 पीटीजीज को। ना रूल यही कहता है कि अगर डेप्थ में कोई स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है नंबर्स को, तो इसका मतलब यूपीएससी चाहता था कि वो ऑप्शन सही हो। और अगर सिंपल सा जैसे 75 को 95 कर देना, या 5500 स्क्वायर किलोमीटर, हो सकता है एक्चुअल कुछ और हो, उसको बस नंबर छोटा सा चेंज कर देना। उसी तरह से IRNSS में यूपीएससी ने यहाँ आपको सही स्टेटमेंट दिया 3 + 4, और एक डिटेल में दिया उस चीज को। तो यूपीएससी हमेशा इस चीज को दोहराता है। अगर किसी ने इस चीज को ध्यान दिया होता
तो यूपीएससी 2019 का जो सवाल था अंडमान निकोबार का, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, सिर्फ उसके ऑप्शंस बदले हुए हैं और नेचर ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। यही तो सीखने वाली बात है। अगर यही सवाल 2020 में आएगा तो अब मैं समझता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती नहीं दोहराएंगे। डेप्थ में अगर दिया है स्टैटिस्टिक्स और उसी क्वेश्चन में अगर एक शैलो स्टैट दिया हुआ है तो शैलो स्टैट गलत होता है, डेप्थ वाला स्टैट सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, पहला सही है, आंसर 1 है। दिस एज पर रूल इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ये इजी सवाल था सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन कंडीशन में। सेकंड सवाल पे हम आते हैं। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग एंड मैटर रैप्स इट्स अराउंड स्पेस टाइम। नाउ ये तीनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। कोई भी स्टेटमेंट कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल लॉजिकल कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब सही मारना चाहिए, अगर कोई भी आपको गलत ना लगे। ऑल 3 ऑफ देम आर करेक्ट, यही आप रूल से करते, आंसर भी यही था डी, और ये भी एक आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 जीएम मस्टर्ड पे आते हैं। जीएम मस्टर्ड के बारे में उन्होंने 3 लाइन दी थी, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया था, जीन्स के बारे में बताया, जो उनको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग, याद रखिए। जनरली डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की ये क्या है, जीएम मस्टर्ड क्यों है, ये सब सही होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अब इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में क्या किया कि जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय आईएआरआई एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। जहां भी आपको एक फैक्ट दिखे, स्टैट्स दिखे कि अरे इसने डेवलप किया, आप समझ लीजिए कि एक एग्जामिनर ने क्या गलती कर सकता है। एग्जामिनर यही चाहेगा कि कोई और यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहा हो, उसके जगह पे हम ये नाम दे दें। तो अगर आप इसको इलिमिनेट करते 3 को तो डायरेक्ट आपका आंसर 2 आ जाता है एंड आंसर वुड हैव बीन बी, विच इज अगेन अ इजी क्वेश्चन एज पर रूल। रूल्स काम कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं इन तीनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं? मैच द फॉलोइंग में 3 है। मैंने आपको हमेशा बोला है जब 3 स्टेटमेंट्स हों तब आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं? 2 ओनली दिया हुआ है, 1 2 एंड 3 दिया हुआ है। अगर 50% या उससे अधिक ऑप्शन, ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे बी है और डी है, तो 2 ऑप्शन, ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो आपका ब्रेन में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि इस तरह का ही ऑड नंबर ऑप्शंस ही सही होगा। इसका रैशनल क्या होता है कुछ लोगों को पता चल चुका है, कुछ लोगों को फिर से बता देता हूँ। रैशनल ये होता है कि वो 2 स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे राइट हैंड साइड के, तो वो दोनों गलत हो जाएगा और एक ही स्टेटमेंट सही होगा। नाउ ब्लॉकचेन इज बेस्ड ऑन डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी में मदद देगा, दिस इज अ फेयर एंड करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ एवरी ईयर यूपीएससी आस्क दिस yes 9, तो आप देखेंगे कि दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, दिस वाज अगेन आस्क्ड इन 2019, अगेन आस्क्ड इन 2017, so this is one of their favorite questions of science and technology. Now it is not related to particle physics, we all know कि ये genes और इनसे related, and particle physics is basically related to Bell 2 experiment, it is not related to AI। तो बेसिकली इन्होंने रिवर्स कर दिया है पार्टिकल फिजिक्स और AI को एक दूसरे से। तो इसमें भी आप आसानी से उसको अगर फॉलो किए होते, CSI PR से भी लोगों ने आंसर निकाल लिया, वो गलत था। लेकिन मैच द फॉलोइंग का भी अगर आप रूल निकालते तो इसमें बहुत सिंपल सा था, ऑड नंबर में 1 2 3 तो सही हो ही नहीं सकता था क्योंकि एक तो गलत निकल ही चुका था, तो 2 ओनली वुड हैव बीन द आंसर, और ये बी आ जाता है। ये चारों क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा इस पेज का 10 सेकेंड रुक के, ये चारों क्वेश्चंस एग्जामिनेशन कंडीशन में भी रूल के साथ बनाए जा सकते थे। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है ये आपको सोचना है। आप कितना खुद पर भरोसा करते हैं, कितना आप रूल्स पर भरोसा करते हैं, ये आपको भरोसा दिखाना होगा एग्जाम में अगर आपको नहीं आ रहा होता है। और जनरली भी ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन फर्टिलाइजेशन पे। नो, कार्बन फर्टिलाइजेशन जैसे ही आप वर्ड पढ़ते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज एसिडिटी, एडप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब ऑल लिविंग बींग्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिविंग बींग्स एक बहुत ही बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, दैट कांट हैपन। बचे आपके पास 3 ऑप्शंस, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ है, टेम्परेचर है एंड एसिडिटी है। नाउ फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इज रिलेटेड टू सम ग्रोथ, कुछ फर्टिलाइज कर रहा है, कुछ ग्रो हो रहा है। तो अगर आप वर्ड्स को ध्यान से देखें, मैंने बताया भी है एटिमोलॉजी जो होता है कि वर्ड्स को तोड़ के वर्ड्स का मीनिंग समझ के आप आंसर ला सकते हैं। और ये होगा भी अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये काफी आसान सा सवाल था कि कार्बन अगर बढ़ेगा मात्रा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी और उसके कारण बेसिकली प्लांट का ग्रोथ बढ़ेगा, तो इसी को कार्बन के कारण फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें रूल्स डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा था, आपको इसे समझना था। ये वाला जो हमने रूल बताया है कि क्वेश्चंस
के वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें, उसे तोड़ के देखें, उसका मीनिंग देखें किस स्टेटमेंट से निकल रहा है। अगले सवाल में आते हैं, जब भी कोई लंबा सा सवाल दिखे अगर आपको एग्जाम में और उसमें कोई जाना पहचाना ऑप्शन दिखे तो उसे लगाना चाहिए। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि न्यूज में चल रहा है, नो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब चीजें नहीं चल रही है न्यूज में। और अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा ये आईओटी से रिलेटेड था, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ, दिस वाज ऑलवेज इन द न्यूज। ये फिर से हो सकता है चेंज करके आ जाए इस बार। तो हम सोलर पावर प्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें दिया इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। नाउ मैंने पहले ही बोला कोई स्टैटिस्टिक्स है डायरेक्टली, वो गलत हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि स्टैट्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या होगा, ये सब आप आंसर देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या होगा, और आपको पढ़ना भी चाहिए क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन रूल्स कहता है कि स्टैटिस्टिक्स गलत होगा। दूसरा, सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। अगेन इट इज ए फैक्ट गिवन। हो सकता है कि टैरिफ्स किसी और से होता होगा और इन्होंने जानबूझ के ऐसी ऐसी सीआई कर दिया होगा इसे। तो जब भी फैक्ट दिया हो इस तरह का कोई स्टेटमेंट तो ये गलत होगा, और जब भी आपको ये दिया है ये भी गलत होगा। स्टैटिस्टिक्स दोनों गलत हैं, आंसर डी है। ये भी रूल से आसानी से निकाला जा सकता था और आसान सा क्वेश्चन था। अगेन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन टू डिराइव फ्रॉम दिस क्वेश्चन। Nowadays many questions have neither 1 and 2 as option. In fact in 2018 there were at least 5-6 questions जिनका आंसर neither 1 and 2 था, और यही ट्रेंड रिपीट हुआ 2019 में भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह के सवाल में आपके एक भी गलत मिल जाते हैं आपको, स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट, इस तरह के ऑप्शंस दिखते हैं कि स्टैट्स या फैक्ट है, तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट नाउ इट इज टू गो फॉर नाइदर 1 and 2 रादर देन अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। स्टेपल कॉमोडिटीज टू बी एक्सपोर्टेड। नाउ एक्सपोर्ट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से? बंगाल से, ये दिया हुआ है इस सवाल में। नाउ वी नो दैट ओपीएम की खेती इसलिए की करवाई जाती थी इंडिया में जिससे उनका एक्सपोर्ट हो सके। ओपीएम दो ऑप्शंस में है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो चीजें इंडिया में करवाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हमेशा ध्यान रखा करिए। सो ओपीएम तो होगा ही होगा। अब बचा दो ऑप्शंस, एक में दिया हुआ था कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, एक में दिया हुआ था रॉ कॉटन एंड ऑयल सीड्स। नाउ थिंक अबाउट इट। एक बंगाल है, बंगाल में और असम में जो साइड है वहां पे सिल्क की भी कल्टीवेशन होती है, इसीलिए बंगाल भी दिया हुआ था। दूसरा, रॉ कॉटन मंगवाया जाता था और कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, जो कॉटन के बनाए हुए थे कपड़े। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते तो इसमें भी गलती करने के चांसेस कम थे। पीपल वुड हैव गॉट कंफ्यूज विद सॉल्ट पीटर, हाउएवर यू शुड हैव गॉन विद द रूल ऑफ थंब कि रॉ कॉटन तो आएगा और कॉटन यहाँ से जाएगा। तो द राइट आंसर वुड हैव बीन डी। इट वाज आल्सो एन एवरेज क्वेश्चन, इट वाज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एज पर द रूल्स आल्सो। आपको अच्छे से पढ़ना था। चंपारण सत्याग्रह भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई रूल नहीं लगाना था, पेजेंट के साथ रिलेटेड था। रूल यही था इसका कि ज्यादा इजी क्वेश्चन हो तो इजी क्वेश्चन विल बी देयर, ऐसा नहीं है, नहीं तो नंबर कैसे आएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि कोविड-19 कौन सा वायरस से रिलेटेड है, कोरोना वायरस से, तो आप ये नहीं सोचने लगिए कि, और उसमें ऑप्शन सार्स वायरस दिया है, अलग अलग तरह का दिया है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना कर जाएं। ऐसा क्वेश्चन 2015 में भी आया है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, निपा वायरस पे, इन सब पे, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेजेंट के कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ। बाकी इतना इसमें ये नहीं कर लेना है कि क्यों और रेलिवेंट है, प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये सब पे नहीं जाना है, या दलित मूवमेंट हो गया, लॉयर का हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। सिंपल जो है अनरेस्ट था पेजेंट का, इसलिए हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है, मुझे लगता है कि इसमें रूल्स काफी अच्छा काम किया। हिंद मजदूर सभा, अगर इसमें कोई बिना रूल के बनाए या बिना बेसिक समझ के क्वेश्चन को बनाए तो उन्हें लगेगा कि हिंद मजदूर सभा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है, यही तो खासियत है आजकल के यूपीएससी की कि आप ऑप्शंस को देखिए ना। आप रोट लर्निंग पे क्यों जा रहे हैं कि हिंद मजदूर सभा? कितने कम बच्चे होंगे दुनिया में जिनको हिंद मजदूर सभा पढ़ा होगा और इसी तरह से पढ़ा होगा कि कौन उनके फाउंडर थे, भले ही आपने कितना इंडिपेंडेंस की लड़ाई पढ़ ली होगी। नाउ अगर आप इस ऑप्शंस पे जाते तो आप देखते हैं पहला ऑप्शन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, के कृष्ण पिल्लाई, ईएमएस नमपुर दीपड़ एंड केसी जॉर्ज। नाउ ये तीनों नाम साउथ इंडियन नाम है प्लस क्रिश्चियन नाम है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस एस्पेक्ट्स आल्सो। हिंद मजदूर सभा एक बेसिक सा हिंदी नाम है जो कि नॉर्थ इंडियन लोगों ने रखा होगा, ये समझ में हमें इस सवाल से आता है।
यहाँ पे जैसे ऑप्शन सी भी था, रामास्वामी, अय्यर, के कामराज, नाउ दीज अगेन आर साउथ इंडियन। तो ये दो ऑप्शन तो साउथ इंडियन के कारण बिल्कुल इलिमिनेट हो जाते हैं, और आपके पास बस दो ऑप्शन बचता है इस क्वेश्चन में। एक ऑप्शन था आपके पास जेपी नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड एम एन रॉय, और दूसरा आपके पास था अशोक मेहता, टी एन रामानुजम एंड जीजीएल मेहता। नाउ अगेन हियर इज ए कैच, अशोक मेहता, जीजी मेहता एंड टी एस रामानुजम में एक साउथ इंडियन है, तो आप बोलेंगे कि इसे भी एलिमिनेट कर देना चाहिए, नहीं, क्योंकि दो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन थे। दैट इज द पॉइंट कि हर बार रूल अकेले मत लगाइए, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। नाउ दिमाग क्या लगाना था, जैसे एम एन रॉय, तो हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था कि एम एन रॉय सीपीआई के साथ रिलेटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया था, जेपी आंदोलन के साथ रिलेटेड है। तो अगर जेपी जयप्रकाश नारायण हिंद मजदूर सभा से रिलेटेड होते तो कभी ना कभी तो इस चीज का हमें उल्लेख आया होता, क्योंकि इतना जेपी नारायण के बारे में पढ़ते हैं, एम एन रॉय ने सीपीआई बनाया तो उनका उल्लेख आया होता। तो इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ा था एम एन रॉय का हिंद मजदूर सभा के बारे में। तो जो आपने नहीं पढ़ा है उसे कभी नहीं मारिए, यही इसका कहना है। जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा दिखाइए कि जेपी अगर आपने पढ़ा है तो जेपी इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाता है जेपी और एम एन रॉय, क्योंकि हमें पता था कि इससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाता। और ये भी रूल वर्क्स, और एक टफ क्वेश्चन था एग्जाम के लेवल के हिसाब से, लेकिन रूल काम करता है। बेसिक रूल्स अच्छे से रखें तो काम करेगा। अगेन अगले सवाल में हम आते हैं, तो था स्तन, आई थिंक स्तनकन वासी का सवाल था। एक सेकंड में उसे हिंदी में देख लेता हूँ कैसे प्रोनाउंस करते हैं। स्थानकवासी, स्थानकवासी। ना स्थानकवासी में मैंने पहले ही बोला, जब भी इस तरह के सवाल आए तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ही आंसर होगा, ये आपको ध्यान से समझना है। और दूसरा इसका एक था, देखिए स्थानक जैसे है उसी तरह का तो नाम तीर्थंकर है, तीर्थंकर, स्थानकर, इस तरह से आप सोच सकते थे। तो बहुत ही अच्छे से सोचने पे, जैसे स्थान, इसको दो में तोड़ लेते, वासी और स्थानक। तीर्थंकर को तोड़िए, तीर्थांग और उसके बाद कर। तो अगर आप इस तरह से देखते तो आपको एक कोरिलेशन समझ में आता, उससे थोड़ा सा आपको मैचिंग लगता, तो आप इसमें जैनिज्म की ओर बढ़ सकते थे। अगेन इस साल जो सवाल आया वो बुद्धिज्म से आया, तो 2020 में एक्सपेक्टेड है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप उसका ऑप्शन जैनिज्म करिएगा, अगर बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों हो, और बुद्धिज्म जैनिज्म में ही आंसर निकलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें व्हाइट मार्बल यूज किया गया है, रेड सैंडस्टोन कहाँ यूज किया गया है, रूमी दरवाजा। ये मैं तो ऐसे सवाल पढ़ता भी नहीं हूँ, देखा मैंने, दोनों फैक्ट हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। आजकल नाइदर 1 एंड 2 काफी चलता है, दोनों गलत भी थे, आंसर डी आ जाता, आपका सही भी हो जाता, बिना जाने कि व्हाइट मार्बल को यूज किया गया बुलंद दरवाजा में या रेड सैंडस्टोन को, आपको इसका आंसर भी मिल जाता। नाउ फैक्ट क्यों गलत होते हैं, क्योंकि फैक्ट इंटरचेंज किए जा सकते हैं, और फैक्ट को गलत करना किसी भी एग्जामिनर के लिए बहुत आसान है, इसीलिए ये रूल वर्क करता है। नाउ आई वांट टू से इन दिस क्वेश्चन ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, if you don't know the rules, if you don't apply the rules, this is one of the toughest question of the paper. How do you even think a aspirant reading tons and tons of material will be able to know या recall कि white marble was used in बुलंद दरवाजा एंड फतेहपुर सीकरी? आप इसे नहीं जानते होंगे। इस चीज का एक्सेप्टेंस जितना जल्दी आप कर लें उतना अच्छा है। पीपल कांट नो ईच एंड एवरीथिंग। रेड सैंडस्टोन कौन जानता होगा इतना, कि इतना ज्यादा किसी एक दो ने पढ़ लिया होगा, उससे ज्यादा नहीं जान सकते हैं लोग, लेकिन कई लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया और कई लोगों ने इसे सही किया। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी आर टेलिंग, सो इट कुड हैव बीन अटेम्प्टेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, डायमंड एंड डायमंड माइंस। वेल मुझे इसका आंसर पहले से पता था, मैंने कभी पढ़ लिया था, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है, अब आपको लगा ये तो मैं चारों नाम में से कोई भी नाम नहीं जानता हूँ, फ्रैंकिस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, देन जीन डी टेवनोट एंड एबी बार्थेमिकारी। नाउ हमने आपको पिछले बार एक रूल बताया था कि अगर ऑप्शंस जो मैचिंग होते हैं उसमें से जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उसमें जाना चाहिए, उसमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। नाउ इसमें देखिए सिमिलर नाम कहाँ है, बी एंड सी में है, जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर एंड जीन डी थेवेनॉट, दोनों में जीन है, तो आप इसमें से कोई एक तो जा सकते थे, जीन थेनेवर्ट के लिए या जीन ट्रेवेनियर के लिए। नाउ अगेन आप ए एंड बी में देखिए, फ्रांसिस्कस बर्नियर एंड जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर। अब ये दोनों नाम भी काफी सिमिलर है, बर्नियर एंड ट्रेवेनियर। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं कि दो ऑप्शंस जो सिमिलर होते हैं उसमें से ही एक आंसर होता है, तो आपको इसमें से हिंट दे रहा था यूपीएससी कि आप जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर के लिए जाइए।
कम से कम एटलीस्ट रूल अप्लाई करके आपको 2 तो छाट ही लेने चाहिए कि जीन जीन वाला तो आपको पहुंच जाना चाहिए था कि यार इसीलिए दिया ही गया है ऑप्शन। वरना सोचिए करोड़ों नाम है दुनिया भर में, उसमें से ये 4 ही नाम क्यों उठाए गए, गलत के ये 3 ही नाम क्यों उठाए गए, आपको ये सोचना है। सही तो देना ही था, तो गलत के ये 3 क्यों दिए गए। अब इसमें मैं आपको फिर से एक रूल और बता दूं, अगर 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ नन ऑफ दिस दिया होता डी में, एबे बेल्टमोट कैरे के जगह, तो ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दिस के लिए मत जाइए। इस तरह के सवाल में नन ऑफ दिस जनरली आंसर नहीं होता है, ये भी एक थंब रूल ऑफ थंब है। ठीक है, 14वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नाउ इंडियन हिस्ट्री में जो फ्यूचर बुद्धा होंगे, जो दुनिया को बचाने आएंगे, वो कौन होंगे, इस तरह से कहा गया है। बड़ा प्यारा सवाल है, आप ध्यान से सोचिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ध्यान से सोचा करिए, इसकी क्षमता को बढ़ाइए कि आप किस तरह से वैसा सोच सकते हैं। नाउ 2 जो ऑप्शंस थे इसमें, पहला ऑप्शन था अवलोकितेश्वर और दूसरा ऑप्शन था लोकेश्वर। अब अगर आप अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया, तो ये दोनों रिदमिक थे, तो आप इसके लिए जा सकते थे, पर इसमें हम इसके लिए इसीलिए नहीं जाएंगे, रीजन भी बुद्ध की बात हो रही है, यहाँ ईश्वर की बात हो रही है। ईश्वर हिंदू धर्म में आता है। लोकेश्वर, अर्धनारेश्वर, जो हम इस तरह की बात करते हैं, ईश्वर वाला जो हम संधि करके करते हैं, तो लोकेश्वर और अवला को लोकेतेश्वर दोनों में ईश्वर वर्ड है। ईश्वर इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, इसे आपको सोचना था। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते, मैत्रेय और दूसरा बचते पद्मापनी। नाउ इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन के लिए जा सकते थे, एलिमिनेट करना तो अब वहां पे था। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ क्वेश्चन आपको और कैसे हिंट दे रहा था ताकि आप समझ सके अगर इसमें भी एलिमिनेट करना है तो। उन्होंने कहा कि एक फ्यूचर बुद्ध आएंगे जो कि वर्ल्ड को सेव करेंगे। नाउ वर्ल्ड को सेव करना है तो वर्ल्ड किधर बढ़ रहा है, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरफ बढ़ रहा है, जो कलयुग का ये सब तरीका है। लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह की। तो मैत्रेय जो नाम था, मैत्रेय, वो मैत्री से रिलेटेड था, मित्रता से रिलेटेड था। तो आई थिंक इस तरह का उन्होंने सोचा होगा कि फ्यूचरिस्टिक जब वर्ल्ड आएगा उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमारा ये अवतार उसको सुधारेगा जिसमें मित्रता और इसका ये रहेगा। मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ, you follow it, you don't follow it is your choice. However, this can be thought as a thing to think in the real exam also. Again, with a lot of hindsight bias, these rules have been formed, and but most of them actually do work. तो इस तरह से आप मैत्रेय तक पहुंच सकते थे अगर आप कोशिश करते। However, it is a difficult one. Again, I'll say. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? प्लीज रीड दिस क्वेश्चंस केयरफुली। हियर इट इज सेड नॉट अप्लाई। सो नॉट अप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए उल्टा हमें फाइंड करना है ना। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है, अलायंस मतलब सहायक संधि, इसका हिंदी अगर आप देखिएगा तो। और दूसरा ये सब सब्सिडियरी अलायंस हुकूमत से रिलेटेड था। हुकूमत कैसे करेगा कोई आदमी? आर्मी से। हुकूमत कैसे करेगा कोई आदमी? हम आपका हुकूमत कर रहे हैं, सब्सिडियरी हम आपको रखेंगे तो हम आपका प्रोटेक्शन भी करेंगे, हम आप पे आर्मी भी रखेंगे, हमारा आप पे वर्चस्व भी रहेगा। इस तरह से अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते तो आपको काफी आसान लगता कि देखिए एक जगह दिया है पहला क्वेश्चन में कि मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रहेगा आपके खर्च पे, हम इंडिया को सेफ रखेंगे नेपोलियनिक डेंजर से, और हम इस्टेब्लिश करेंगे ब्रिटिश पारामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे नेपोलियन का डेंजर है, तो एक फैक्ट दिया हुआ है कि नेपोलियन से ही हमें बचाना है, तो हाँ इसको आप गलत कर सकते थे अगर ऐसा रूल लगा देते तो। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा भी है और ये किया जा सकता था। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट था वो बेसिकली सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। नो, सब्सिडियरी अलायंस नेवर टॉक्ड अबाउट इट। ये सब तो परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम जो भी इनकम का था, इकोनॉमिक इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्सिडियरी अलायंस। सो अगर आप इस तरह से सोचे होते कि इसको सेफ रखना है, इसके आर्मी को मेंटेन करना है, इसका पारामाउंट करना है, तो आप इसे बना सकते थे। हाउएवर इसमें रूल से आप अगर जाते तो गलत हो सकता था, मैं ये नहीं कहूँगा। सो इसमें फैक्चुअली अगर आप जाते, बेसिक से जाते, तो इतना भी टफ सवाल ये नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बढ़ नहीं पा रहा है हमारा स्लाइड। हाँ,
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। नाउ 16 में भी बहुत सारा डेटा दिया हुआ है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन 1969 में आया कि नहीं, हु नोस। पहला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्वतंत्रता पार्टी था कि नहीं, हु नोस। तीनों ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए पहले अगर ऐसा रहे तो, जिसमें तीनों में डेटा दिया हुआ है। नाउ 75 मेंबर्स, अगेन आई विल से दिस फैक्ट ओनली कि हमें पता था, उसमें बात भी चल रही थी कि 10% होना चाहिए एक पार्टी का, तभी होता है। 45 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए। तो अगर आप ये स्टेट्स को गलत मान लेते तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता, क्योंकि तीन जो था वो तीन ऑप्शन में था और डायरेक्टली हट जाता और आपके आंसर आ जाते इस स्टैटिस्टिक्स को गलत मानने से। तो वही मैंने बोला कि यही रूल्स की खासियत है कि जो सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वाला स्टैटिस्टिक्स है उसे आपको गलत मानना चाहिए। कि 74 हो सकता है कि 45 मेंबर्स होते होंगे तो उसे 75 कर दिया होगा, नंबर्स वाले खासकर जो होते हैं। और इसमें आपका बेसिक नॉलेज भी टेस्ट होता है। कुछ लोग बोल सकते हैं हो सकता है 1969, बिल्कुल 1969 गलत कर दिया हो, 1965 रहा हो ईयर, उसको 1969 कर दिया हो। देन जो आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, मैंने बार बार बोला रूल्स आपके पढ़ाई के ऊपर आता है। तो 45 वाज इन न्यूज ऑल्सो, क्योंकि नई सरकार आई थी तो उस समय काफी इस पे चर्चा हुआ था। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन था लीफ मॉडिफिकेशन, जिससे वाटर लॉस कम होगा। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न लीव्स, ये बचपन से पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं ठीक से, इतना अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट, यू शुड गो फॉर इट। आंसर इसका डी था, काफी आसान सवाल था। नाउ हम देखते हैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सर्वे के बारे में। एक सवाल दिया गया था जिसमें दिया गया था राजस्थान है हाईएस्ट परसेंटेज, तो इसे अभी आप होल्ड करके रखिए, यू डोंट नो। रूल के हिसाब से ये गलत होगा कि ऐसा कैसे कह सकता है कि कोई एक स्टेट ये आपको एक स्टैट्स दे रहा है पर इसे होल्ड कीजिए। तीनों स्टेटमेंट पढ़िए। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन ए कंट्री लिटिल ओवर 60%, मतलब मोर देन 60% बिलोंग टू ओबीसी। नाउ दिस शुड स्ट्राइक यू। एक सेकंड के लिए सोचिए, डरिए नहीं पढ़ के कि भाई ओबीसी का कितना रिजर्वेशन है, 27% है। नॉन क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर में भी कुछ होते होंगे तो 40% तक मान लीजिए होते होंगे। 60% लोग अगर यहाँ पे दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में, एंड यू शुड अज्यूम कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली। ऐसा नहीं है कि जो हाउस होल्ड में एग्रीकल्चरल कर रहे हैं वो ओबीसी ज्यादा हैं और बाकी सब में जो सोसाइटी में वो ओबीसी कम होंगे। तो यहाँ पे दिया है 60% से भी अधिक हाउस होल्ड ओबीसी हैं, दैट इटसेल्फ शुड रिंग बेल ऑन योर ईयर्स। और इससे आपको जैसे ही आप 2 ऑप्शन को गलत मानेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1 and 3 इज करेक्ट। 3 को पढ़ लीजिए। केरला में 60% से ज्यादा एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड ने बोला है कि हमारा एक्सपेंसेज बाहर से आता है। ये तो सही बात है, रेमिटेंसेज आर द, ये एग्रीकल्चरल इनकम से नहीं आता है, किसी और सोर्स से आता है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर केरला। So this is something which you should understand कि जो basic common sense है, and then rule will work together. Again we come to NGBT and CPCB. Now NGBT and CPCB, पहला लिखा हुआ है कि NGBT एक एक्ट से होगा, CPCB एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। जहां आपको इस तरह का दिया है कि ये एक्ट से होगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, बिल्कुल गलत होगा। आपको एक फैक्ट दे रहा है, आप एकदम मान के चलिए कि कुछ बदल दिया होगा या जानबूझ के कुछ गलत कर दिया होगा। दूसरा, एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस एंड स्ट्रीम्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर। नाउ मैंने क्या बोला है आपको, जब भी डेफिनेशन देता है यूपीएससी तो ध्यान से पढ़ा करिए क्या डेफिनेशन सही दिया है। तो सीपीसीबी हो गया आपका ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये बात भी क्या चीज़ का कर रहा है, एयर क्वालिटी का, तो बिल्कुल सही है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल क्या करना चाहेगा कि लिटिगेशंस को कम करने के लिए तो बनता है। तो दोनों के डेफिनेशन को इसने स्वैप नहीं किया है, डेफिनेशन वाला पार्ट सही है, पहला वाला गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी एग्जामिनेशन कंडीशन में सॉल्वेबल क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। हमेशा देखिए 9 शेड्यूल ये सबसे सवाल रहता ही रहता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल। द कीवर्ड इज कैन। क्या कैन मतलब कर सकता है, तो बिल्कुल कैन वाले वर्ड्स, कैन वाले लाइन जनरली सही होते हैं, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। और दूसरा मैंने जैसे राइट में लिखा है वैलिडिटी ऑफ ए लॉ इन 9 कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। पहले तो कैन नॉट वर्ड है, मैंने पहले ही बोला है आपको कि कैन नॉट वर्ड एक गलत होता है। बाई एनी कोर्ट, अगेन दूसरा वर्ड एनी कोर्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड नो जजमेंट, तीसरा भी वर्ड है इसमें नो जजमेंट। तो ये तीनों इतने एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ये भी काफी आसान सा था, ये भी डिफिकल्ट नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाज ए ट्रैप क्वेश्चन। यूपीएससी काफी कम ट्रैप क्वेश्चंस देती है, पर 1-2 ट्रैप क्वेश्चंस हर साल रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में जो दिया गया है, सबसे पहले जो आपको रूल सिखा है, जो मैंने राइट में भी लिखा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और अगर आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो उस ऑप्शंस में मर्चेंट वर्ड होना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है। तो देखिए किन ऑप्शंस में मर्चेंट है। द इंसेंटिव, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द इंसेंटिव गिवन बाय ए बैंक टू अ मर्चेंट, ठीक है, पहले ऑप्शन में है। दूसरा, द अमाउंट पेड बाय द बैंक्स टू द कस्टमर्स, इसमें तो मर्चेंट है ही नहीं, तो ये तो पहले ही हट गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरा, द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय ए बैंक, ये भी ऑप्शन में मर्चेंट है, ठीक है भाई, इसमें भी एक वर्ड निकला मर्चेंट। चौथा, द इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स, इसमें भी मर्चेंट है। मतलब हम लोग ने रूल, बेसिक रूल अप्लाई किया कि अगर क्वेश्चन है जिस तरह का, ऐसा जब भी डबल कोट्स वाला क्वेश्चन होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, हमने 2020 में भी देखा था ऐसा एक सवाल, जिसमें हमने ये देखा था कि सीएजी से वो डेटा प्रोटेक्शन वाले को डबल कोट करके किया था। तो पहला तो एक हट गया हमारे पास, अब तीन बचे। अब आप थोड़ा सा सोचिए इसमें कि गवर्नमेंट किसी चीज को, द इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, गवर्नमेंट यार कैसे किसी को इंसेंटिव दे सकता है? इतने किराने दुकान, इतने मर्चेंट्स होंगे, क्या मूड होगा गवर्नमेंट का इंसेंटिव देने का? हमेशा ये सोचा करिए कि गवर्नमेंट किसी चीज को देता है तो वो आपको पता है, जैसे आपका पीडीएस से दे रहा है, जनधन हो गया या उज्ज्वला हो गया, ये सब न्यूज में रहता है। अगर गवर्नमेंट मर्चेंट्स को दे रहा होता तो ये न्यूज में नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता। और कैसे दे सकता है इतना वाइड, हर मर्चेंट को देना टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और गवर्नमेंट क्यों दे मर्चेंट को पीओएस मशीन एंड डेबिट कार्ड के लिए? अगर लिखा रहता रुपे कार्ड, देन ऑल्सो इट वॉज एग्रीएबल, बट डेबिट कार्ड एंड पीओएस मशीन के लिए कैसे दे सकता है गवर्नमेंट? तो ये आपका गलत हो जाता। अब बचता आपके पास दो ऑप्शंस, या तो बचता इंसेंटिव या तो बचता चार्ज। अब इसमें ये ट्रैप क्वेश्चन था, आंसर था ये चार्ज होता है जो कि बैंक लगाता है कस्टमर को, बेसिकली अपने मर्चेंट से, क्योंकि आपने उसका यूज़ किया। इसको अगर टेक्निकली समझना है तो ये होता है कि अगर मैं एक, मान लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस का या डॉयचे बैंक का कार्ड लेके चलता हूँ और वो मर्चेंट भी हमारा एक्सेप्ट करता है डीबी का कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो बेसिकली उसके पास एक डिवाइस होता है पीओएस। मैं एकदम लेमन टर्म्स में समझाऊंगा। तो अगर मैं, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास सोडेक्सो है मान लीजिए, तो मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, तो मैं सोडेक्सो से खरीदता हूँ 100 रुपये का सामान। तो क्योंकि मैं उस दुकान में पैसे लेके नहीं गया, सोडेक्सो लेके गया और सोडेक्सो से मैंने सामान खरीद लिया, तो उस दुकान वाले की बिक्री हो गई। वरना अगर वो पैसा खोजता, मान लीजिए मैं पैसे लेके नहीं जाता, तो मैं नहीं खरीदता। तो सोडेक्सो एक इनेबलर हो गया जिसके कारण मैं और वो दुकानदार उन इंगेज कर पाए एक मीनिंगफुल, एक तरह से बाइंग एंड सेलिंग में। तो फिर दुकानदार को फायदा किससे हुआ? सोडेक्सो से हुआ। तो दुकानदार किसको फिर कुछ रिटर्न करेगा? सोडेक्सो को। उससे कुछ कमीशन सोडेक्सो लेता है 5% की। आपने सोडेक्सो कार्ड को एक्सेप्ट किया तो 5% उससे सोडेक्सो बनाता है। यही मॉडस ऑपरेंडाई है इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। तो ये बेसिकली एक चार्ज लगता है मर्चेंट, समझ लीजिए इसमें सोडेक्सो, जिसने पेमेंट समझ लीजिए मैंने किया। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा तो आसानी से होगा कि 5% 100 रुपये में 95 रुपये इनके पास आता है और 5 रुपये वो सोडेक्सो कंपनी को वापस देते हैं दुकानदार। अगला आते हैं एनएसजी पर। अब एनएसजी का था कि इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड, अगर एनएसजी के मेंबर हम बन जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अगेन इट इज अ वेरी जेनरिक, वेरी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कि हाँ भाई एक्सेस मिल जाएगा हमें लेटेस्ट एंड एफिशिएंट मशीन्स का। क्यों नहीं मिलेगा? फैक्चुअली ट्रू है, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं दिया है, कोई बड़ा फैक्ट नहीं दिया है, और गुड लुकिंग स्टेटमेंट है। दूसरा है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ एनपीटी। नाउ ऑटोमेटिकली इटसेल्फ इज ए रॉन्ग वर्ड, एनपीटी इटसेल्फ इज ए वेरी ट्रिकी ट्रीटी, ये जो हमारा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली इसमें दोनों वर्ड गलत हैं, ऑटोमेटिकली, स्पीडली, ये सब कभी नहीं होता है, जनरली ऐसा पाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी ऑप्शंस वर्क करता है, रूल वर्क करता है इसमें। नाउ ये हमारा जो गूगल वाला टैक्स चल रहा था, लेवाई करने का, ऑनलाइन टैक्स 6% का, ये यार इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। ये जो लोग पढ़ रहे थे उन्हें पता था, क्योंकि अगर इनकम टैक्स का पार्ट होता तो कई लोग स्लैब देखते हैं अपना, तो वो स्लैब देखते आपको दिख जाता। क्यों इनकम टैक्स का होगा? डायरेक्ट इनकम तो आ नहीं रहा है। इनकम टैक्स एक्ट तो सारे जो भी हम डायरेक्ट इनकम जो अर्निंग वाले होते हैं उन पे लगता है, तो इसे डायरेक्ट अलग रखा गया था। इंडिया ने जो डिसीजन रखा था तभी तो एक अलग रखा, इक्वलाइजेशन टैक्स का नाम क्यों दिया? वरना इनकम टैक्स में ये एक और स्लैब बना दिए होते, समझे? तो इसे आपको पहले समझना था। और एडवर्टीजमेंट ये सब पे थोड़ी इनकम टैक्स लगता है, तो ये बहुत सिंपल सा था ये चीज। सेकंड लाइन था नॉन रेसिडेंट एंटाइटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज in India can claim a DA tax credit in their home in DTTA. Now again I will say you one thing कि इस स्टेटमेंट का ये मतलब था कि गूगल टैक्स इसलिए लगाया गया था, लेवाई टैक्स, कि इसमें कोई भी जाके DTTA का में कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम ना कर ले।
वरना इसको अलग से लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी तो लोग डीटीटीए में क्लेम कर ही लेते हैं बहुत सारा टैक्स क्रेडिट, इसलिए इसके भी दोनों ऑप्शंस गलत थे। इसका राइट आंसर डी था। पर अगर हम रूल से जाते तो इसमें क्या लगता लोगों को कि कैन क्लेम लिखा हुआ है, तो कैन इज ए राइट वर्ड, इसलिए इसे ये सही होगा। तो मैं कहता हूँ कि इसमें अगर रूल से जाते तो ये फेल कर सकता था। कोई डिनायल नहीं है अगर आपको ये स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, राइट आंसर इसका पर डी है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये आपको अगर पता होता। अगला हम आते हैं एफ आर बी एम का। एफ आर बी एम भी काफ़ी न्यूज़ में है, ऐसे तो आप लोग का सही होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ 3-4 चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक स्टेटमेंट में एनी लिखा हुआ था, एक स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था ना, स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स गलत होता है, और दोनों स्टेटमेंट सिमिलर थे, सिमिलर बट अपोजिट स्टेटमेंट। मतलब एक ही तरह का फैक्ट दिया है, जीडीपी इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा, बट फैक्ट दिया हुआ है। नाउ ध्यान से सोचिए, अगर स्टेटमेंट ए सही होगा कि 2023 तक डेट टू जीडीपी रेशियो 60% लाना है, जिसमें सेंट्रल डेट 40% होगा और स्टेट डेट 20% होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 21% कंपेयर टू 49% ऑफ द जीडीपी। तो इसमें तो रिवर्स कर दिया, सेंट्रल लाइबिलिटी 41% या 49 लिखता तो मान भी सकते थे। अगर वन स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये तो आपको पता चल ही जाता है। तो 1 और 2 एक साथ इसमें नहीं आएगा, ये क्लियर है। और जो भी लोग पढ़ रहे थे इसको, वो जानते थे कि 2023 एक सही दिया है। तो यूपीएससी जब ज़्यादा डिटेल दे रहा है आपको किसी भी फैक्ट वाले में, तो वो सही रहता है। डेप्थ में गया है, आपको पूरा चीज़ बता रहा है, ये 2023 होगा, सब ईयर सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पे फंसते, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 था कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक सेंट्रल कंसेंट फॉर एनी रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही था, रूल आपको ये स्टेटमेंट गलत करता, क्योंकि आप यहाँ देखते कि मैंडेटरी दिया है, एनी दिया है, तो आपको लगता कि ये गलत है। लेकिन संविधान कहता है कि ये मैंडेटरी है, स्टेट को सेंटर का कंसेंट लेना पड़ेगा अगर सेंटर का कुछ लाइबिलिटी को ये वो करता है। तो इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में रूल वुड हैव फेल्ड। ठीक है, एनी वर्ड था, मैंडेटरी था, आपको लगता कि रूल से आंसर 1 ओनली आएगा, लेकिन रूल गलत कर देता। तो ये कैची सिचुएशन था, हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक। नाउ अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे क्या वर्ड है, मोर देन इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 ईयर्स। इसने कोई ईयर स्पेसिफाई नहीं किया, अगर ये ईयर स्पेसिफाई करता तो पक्का गलत होता, लेकिन इसने जेनरिक लाइन लिखा लास्ट 5 ईयर्स में, एंड मोर देन वर्ड लिखा, ये हमेशा सही होता है। एंड गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड ऑयल। तो यार ऑल भी दिया है, एनी भी दिया है, ऐसा तो गलत ही होगा, तो सेकंड गलत हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाता है। ये काफी इजी था। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जो कि आपको नहीं भी पता होता तो आप कोशिश करते, जैसा हमने देखा था अभी पहले भी मैत्रेय में, तो कोशिश करके कुछ कर सकते थे। He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna, stayed in America for few time, and then he was elected to Central Assembly. Now who was he? Very good question as per me. देखिए, सबसे पहले तो वो अमेरिका में रहे थे ना, अमेरिका में अरविंदो घोष इधर ही वैराग्य पा लिए थे। तो अरविंदो घोष काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए थे, तो एंड ही वाज नॉट, अरविंदो घोष कुड नॉट हैव बीन इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली। मतलब इससे ये पता चलता है कि वो, उनके पास साधन थे कि वो जा सकते थे अमेरिका, वो एक काइंड ऑफ ए बड़े लीडर थे, क्योंकि सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए थे, तो उससे अरविंदो घोष एलिमिनेट हो जाते। और मोतीलाल नेहरू जी को मैं एलिमिनेट करता कि भाई श्री कृष्णा, शिवाजी, ये सब मोतीलाल नेहरू नहीं लिख सकते जनरली। इट्स अ, मतलब ये बेसिकली मैं ये मानता कि ही वॉज अ बैरिस्टर, सोफिस्टिकेटेड बैरिस्टर, और वो जनरली हिंदुइज्म या श्री कृष्णा, इन सब से मोतीलाल नेहरू जी का चांसेस कम है लिखने का इन सब में। अब बचे बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। ना लाला लाजपत राय एक ऐसे आदमी थे जो कि लॉयर थे, और वो फाइट भी किए थे और वो बाहर भी गए थे, तो ये हमें इतना पता था। और वो बायोग्राफीज लिखते थे, किसका लिखते थे ये तो एग्जाम में नहीं पता। तो ऐसे आप सोच सकते थे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल के बारे में बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है, लाल बाल पाल में, तो ये भी एक देखिए, लाल बाल पाल में ही 2
ऑप्शन दिए हुए थे, लाल और पाल, तो मैंने हमेशा कहा कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं उसी में से कोई सही होते हैं। तो ऑप्शन तो सही होना था लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल में ही एक। फिर से समझिए, लाल बाल पाल एक रिदमिक टाइप का है, सिमिलर काइंड ऑफ है, तो ऑप्शंस तो यही सही होता। अब इसमें से कोई एक आपको चुनना था, तो मैं इन सबको देखते हुए लाला लाजपत राय की ओर विद द हाइंडसाइड बायस आपको बताऊंगा कि ये आंसर था। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर इसमें भी आप दो ऑप्शंस इलिमिनेट करके पहुंच तो सकते थे अगर सोचते तो। 27 नंबर क्वेश्चन के आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं किया जा सकता है। किसी को अभी तक लगता है तो अपने नॉलेज डेटाबेस को अपडेट कर लें। आधार कार्ड नहीं है आपका सिटीजनशिप या डोमिसाइल का, और एक बार आधार दे दिया तो आधार कैनॉट भी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड, ये तो गलत है। कैनॉट वर्ड भी दिया हुआ है, अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो कोई मान लीजिए मृत्यु हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर कैसे होगा, तो ये भी गलत है। ये काफ़ी सिंपल सा था, दोनों गलत थे इसके, और इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो के हम देखते हैं। नाउ कौन सा शीश रंग कर गया है पास्ट से, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अरल सी, ब्लैक सी और लेक बाइकाल। तो इसमें देखिए कि ऑप्शंस कैसे हैं, 1 ओनली, 2 एंड 3, 2 ओनली एंड 1 एंड 3। 50% ऑप्शंस कैसे हैं जिसमें 1 ओनली या 3 ओनली। इसका मतलब हो सकता है कि इसमें 2 ऑप्शंस गलत हों और एक ही सही हो। मैं फिर से बताऊंगा कि इसका ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। जब भी 1 ओनली, 2 ओनली ऐसा ऑप्शंस होता, वरना जनरली ऑप्शंस क्या होता, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऐसा ऑप्शन जनरली देता। पर इसने एक्सप्लिसिटली यहाँ 2 ऑप्शंस ऐसे दिए, 1 ओनली एंड 2 ओनली। इसका मतलब ऐसे जब भी रहता है मैच द फॉलोइंग में या इसमें, और इनका परसेंटेज 50 या उससे ज़्यादा होता है, तो ये जनरली सही होता है। तो इसमें से आपको ब्लैक सी के बारे में तो पता था मुझे, बाकी नहीं पता था, तो आप गेस कर सकते थे। ऐसे ये रूल्स ज़्यादा, इसमें ये रूल्स भले लग सकता था, इसमें आप ए एंड सी में आपको फिर गेस करना पड़ता। अब आप देखिए, सेम सवाल यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज करके सीज के बारे में फिर से पूछा 2019 में। दिस इज द ब्यूटी, अगर आप सीज को अच्छे से पढ़े होते इस सवाल से समझ के कि अगले साल भी सीज से सवाल आ सकता है, यू कुड हैव इजीली गेस्ड। ठीक है, यही चीज आपको समझना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 29 नाउ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कई लोगों को लगा अरे यार ऐसा तो आसान सा आता था हर साल, मतलब कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ गया, कभी वर्ल्ड बैंक आ गया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कैसे आ गया। ये भी काफी आसान सा था। देखिए, रूल ऑफ लॉ है, ये किससे रिलेटेड है, जस्टिस से। यहाँ 2 ऑप्शंस भी हैं जिसमें जस्टिस वर्ड दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अगेन मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 2 तरह के सिमिलर तरह के ऑप्शंस हो तो आप एक को सिमिलर ऑप्शंस की ओर बढ़ना चाहिए। नाउ हम बाकी 2 ऑप्शंस को हटा देंगे क्योंकि हमारा रूल यही कहता है। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक कोर्ट है। अब आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट एक इंडेक्स देगा, तो ये संभव नहीं है ना। इंडेक्स कौन देगा, नीति आयोग। इंडेक्स कौन देगा, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कुछ कर रहा है ग्राउंड पे, जैसे नीति आयोग का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है। तो इंडेक्स कोई प्रोजेक्ट हो रहा होगा, उससे एक इंडेक्स पब्लिश हो रहा होगा। ये काफी लॉजिकल लगता है, तो इस हिसाब से आप ये करते तो ये आसानी से बना सकते थे। और एटीएम्स कौन करता है, तो एनपीसीआई। अगेन इस पे एक सवाल आया इस साल इसी तरह का कि ये बैंक ब्यूरो का जो आया था सवाल कि कौन हेड ऑफ द बैंक्स। तो देखिएगा आपकी एटीएम्स, बैंक्स, आधार, पिन, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। तो इन सब चीज को एक बार आपको पढ़ के रखना है। अभी एमलगेशन ऑफ बैंक्स हो रहा है, मर्जर जो हो रहा है, उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 1-2 सवाल इस पर डायरेक्टली आता है हर साल, कि अगले साल आ सकता है कि कौन से बैंक को टू बिग टू फेल क्यों बोला जाता है, क्या होता है टू बिग टू फेल, कौन होते हैं इंडिया में, कौन कौन सा बैंक है जो। तो पहले 30 क्वेश्चन के एनालिसिस से यही पता चलता है कि 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें रूल वर्क कर सकता था, उसमें भी 15 से 16 में तो बिल्कुल वर्क करता और आसानी से आप कर सकते थे। एटीएम्स वाले का आंसर एनपीसीआई है, उसमें भी सिंपल आप ये सोच सकते थे 30 नंबर में कि आरबीआई क्यों करेगा एटीएम से लिंक। आरबीआई तो उसका काम ही नहीं है आरबीआई का ये सब। और एनएसडीएल क्यों करेगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। सिक्योरिटीज का तो काम ट्रेड मार्केट से है, तो फिर ये दोनों तो ऐसे ही हट जाता। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन एंड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, तो पैसा निकालते हैं आप उससे, एटीएम से, तो एटीएम से आपको पेमेंट होता है। तो एनपीसीआई इसका नोडल है, ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ का। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तो बस एक एसोसिएशन है बैंक्स का, वो ये सब काम क्यों करने लगेगा। तो जब तक
इसका यही एनालिसिस है कि 2-3 जगह रूल फेल होता है, 2-3 क्वेश्चन टफ होते हैं एग्जाम में, लेकिन मोर और लेस अगर आप इसमें 30 के 30 अटेम्प्ट करेंगे तो 22 से 23 सवाल आपके एग्जामिनेशन कंडीशंस में भी सही हो सकते हैं, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और 30 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रूल्स और बेसिक दिमाग जो हमें भगवान ने दिया है उसका इस्तेमाल करके हम अपने मार्क्स को रियल एग्जाम कंडीशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब बार बार सवाल को देखिए, उनके ऑप्शंस को समझिए, उनसे कई सारे नए सवाल यूपीएससी फ्रेम करता है हर साल। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में आप लोग को यही हमारी हर वीडियो में दरखास्त है कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो कम से कम बनाइए, मॉक ना बनाएं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर बनाएं।